چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی بیٹا آج جو ہے آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ کل جو کام کر رہے تھے ہم لوگ کوشچن آنسر کا، چیپٹر نمبر 3 کے کوشچن آنسر ہم نے کیے تھے کل، تو میٹنگ آپ کی جو ہے وہ فنش ہو گئی تھی. جی چیپٹر نمبر 3 ہے آپ کا درد دل کے واسطے. مشقی سوالات آج اس کے رہ گئے ہیں، تو آج جو ہے بیٹا اس کی ہم نے ایکسرسائز باقی کی کرنی ہے، اس کو ختم کرنا ہے کل ہم تاکہ نیا کام کر سکے. کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہیں ساتھ میں نے آپ کو اس کے درست اور غلط کی جواب دہی بھی کروا دی تھی، ایسے ہی ہے نا جی. آج ہم نے جملے کرنے ہیں، کالم کرنا ہے، خالی جگہ غلط درست کرنا ہے، پھر خالی جگہ ہے یعنی، اور پھر اس کے بعد محاورات کی نشاندہی ہے. یہ ہمارا کام ہوگا آج کا. جی بیٹا ٹھیک ہے جی. انوش بشیر، انوش بشیر ہے کہ انوشا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا یہی کام تھا مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 15 ہے مشقی سوالات. جی پھر سے میں ریمائنڈ آپ کو دے دوں ریمائنڈر کہ ہم نے جو ہے کوشچن آنسر کے بعد سوال نمبر 2 کیا تھا جس میں درست غلط کی نشاندہی تھی اور یہ 4 تھے. ٹھیک ہے اس کے بعد جناب صفحہ نمبر 15 پہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، اور سوال نمبر 4 میں ہے کہ سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ القابات میں آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. ہم اس کو مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی سپیچ میں یوز کر سکتے ہیں، کسی سوال کے جواب میں استعمال کر سکتے ہیں، جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں ان القابات کو. تو یہ ہے جناب جی یہ ہے کہ آپ کی القاب ہے خاتم النبیین، پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات، رحمت دو عالم، دونوں جہانوں کے لیے رحمت. ٹھیک ہے یہ والے القابات ہیں، یہ ویسے میں نے آپ کو سنا دیے. اب نیکسٹ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ آپ کے جملے تھے، جملے بھی ہم نے کل کر لیے تھے. جی مجھے یاد ہے مخلوق، خوشگوار، بلند، خشک، صحاوت، انسانیت، ایسے ہی ہے نا. جملے بھی ہم نے کر لیے تھے نا جی. اوکے کر دیں آپ لوگ مجھے، یس شاباش جی. جملے بھی ہم نے کر لیے تھے. مخلوق کا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جو میں نے بنایا تھا. خوشگوار کا آج موسم یا بہت خوشگوار ہے. اس کے بعد ہم نے بلند کا بنایا، پھر خشک کا بنایا، ان کے ہم نے اپوزٹ بھی لکھے تھے. اور جناب اس کے بعد ہم نے جو ہے اب جو کام کرنا ہے وہ ہے کوشچن نمبر 6 ہے، جو کہ ہے کہ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. سوال نمبر 6 آئے گا کالم الف ہے اور کالم بے ہے. میں درست والے جو ہیں وہ کالم بے میں لکھتی جاؤں گی، آپ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیے گا. کالم الف کے درست الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. جی پہلا ہے جناب حضرت ابو بکر، ان کا کیا آئے گا کالم بے میں؟ حضرت ابو بکر کا کیا آئے گا؟ صدیق. اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. پھر ہے جناب حضرت عثمان ذوالنورین، 2 نوروں والے. یہ ان کے القابات ہیں. یہ جو کالم ہم بنا رہے ہیں یہ ان کے
साहबा जो हैं इनके अलकाबात हैं खुलफाए राशिदीन के। फिर है जी बुलबुल, बुलबुल को क्या आएगा आगे? फूल, बुलबुल का आएगा फूल। आज जवाब नहीं आ रहे साथ साथ जी। हाँ जी फूल, शाबाश, वेरी गुड ज़बीब। जंजीर, करियां, जंजीर का आएगा करियां, लास्ट वाला ये वर्ड है। आप बुक के ऊपर इस तरह क्रॉस में लगाते जाएं। दर्दे दिल, इंसान, दर्दे दिल इंसान। खुश्क साली, कहत, खुश्क साली कहत, ठीक है। परवाना, चराग, परवाना चराग। और लास्ट वाला है बेटा दार, दुनिया, दार दुनिया, ठीक है। दार का दुनिया, ये दुनिया दारे फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है या खत्म होने की जगह है, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा जी, अब है आगे आपके पास सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है। वो ये है कि सबक दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही कीजिए। दुरुस्त और गलत की अब आपने साथ साथ मेरे बताते चले जाना है। नंबर 1 है अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, दुरुस्त है कि गलत है? यस दुरुस्त है, पहले वाला दुरुस्त है, ओके वेरी गुड। फिर है दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, ये है, ये गलत है। अगला है जमीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा, ये दुरुस्त है। फिर जनाब हजरत उस्मान गनी ने कहा अल्लाह का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा, ये दुरुस्त है कि गलत है? जी जी गलत है, ये गलत है बेटा, शाबाश मिशल, शाबाश बेटा, ये गलत होगा। उसके बाद है फतह मक्का के मौके पर इंसार की जानिब से महाजर सहाबा की मदद की नजीर मिलना मुश्किल है, ये दुरुस्त होगा? नहीं, गलत होगा, क्योंकि महाजर सहाबा की तरफ से नहीं बल्कि अंसार की तरफ से, अंसारे मदीना की तरफ से जो महाजर सहाबा को मदद दी गई उसकी नजीर मिलना मुश्किल है, तो ये गलत होगा। अच्छा आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा बस, अच्छा जी आगे ही आपका सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 है दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब खाली जगह आ गई है, 5 है ये। नंबर 1 हमारी तारीख आदाब मुआशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की डैश मिसालों से भरी हुई है, मुख्तलिफ पहलुओं की, हाँ जी क्या आएगा ज़बीब? रोशन, वेरी गुड, पहले में आएगा रोशन। अगले वाला है सहाबा कराम ने हमेशा भाइयों की जरूरत को अपनी जरूरत पर डैश दी, इसका आंसर कौन बता रहा है? जी ये आया है आंसर आमना की तरफ से, तरजीह, वेरी गुड, तरजीह दी। तरजीह, शाबाश। अगला है जी हजरत सदीक़ अकबर ने डैश की बेमिसल तारीख रकम कर दी, किसकी? हाँ ज़बीब ने ठीक जवाब दिया, सहावत की। सहावत का मतलब बताया था मैंने आपको, सही से है यानी खुले दिल से खर्च करना, सही दिल का भी कहा जाता है। अगला है मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले हलूसे नियत से इसका डैश भी करते हैं, क्या करते हैं इसका? हलूसे दिल से इसका डैश भी करते हैं, क्या होगा जी? हु विल टेल? इजहार, वेरी गुड, वेरी गुड।
अब नंबर 5 है, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखने वाला माशरा इस जंजीर की मानिंद होता है जिसकी कड़ियां बाहम डैश होती हैं। इसका कौन आंसर दे रहा है जी? हाँ, नो लेक्चर नहीं, 12:15 खत्म होना। अच्छा जी, जिसकी कड़ियां बाहम मरबूत होती हैं, शाबाश। जिसकी कड़ियां बाहम मरबूत होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जनाब आप देखें कि आपके इसी पेज पे मुहावरा, उसकी तारीफ बयान की गई, और मैं ये चाह रही हूं कि मैं आपको मुहावरा की जो है तारीफ, ये सवाल नहीं है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि मुहावरात होते क्या हैं। और बेटा मुहावरा जो है इस दफा ये शामिल हैं आपके बी के उसमें जी। मरबूत का क्या मतलब है? मरबूत का मतलब होता है, मरबूत का लफ्ज निकला है, यहाँ पे मैं आपको नीचे लिख के बता देती हूँ, रब्त। और रब्त का मायने होता है ताल्लुक, ताल्लुक रखना, यानी बाहम कड़ियां आपस में मिली हुई होती हैं, ताल्लुक रखे होते हैं, जुड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं, मिली हुई हो, इसका मतलब होता है कनेक्शन। इन इंग्लिश हम इसको कहेंगे कनेक्टेड। मरबूत को रब्त, ताल्लुक, जुड़ा हुआ होना, मिला हुआ होना, ठीक है, रब्त का मतलब जी। तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि आपकी ग्रामर में मुहावरात शामिल हैं, और मुहावरात जो है उसकी आपको डेफिनेशन भी आएगी, और डेफिनेशन के बाद आपको मुहावरे भी लिखने भी होंगे, और इसके भी मेरे ख्याल में 5 नंबर का होगा ये सवाल कि मुहावरे की तारीफ करें और 3 मिसालें दें। ये आपके 5 नंबर बनेंगे। तो यहाँ पे इसलिए आज इसी चैप्टर नंबर 3 में मुहावरा की तारीफ जो है वो हम कर लेते हैं जी। ये मैं आपके सामने जो है वो मुहावरा, उसकी तारीफ जो है वो बताने लगी हूँ आपको। मुहावरा ये सवाल नहीं है बेटा, सवाल के तौर पे नहीं है, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए, और आपको ये बी के काम में मैं जब करवाऊंगी तो वो मैं आपको लर्न भी करवाऊंगी मुहावरा क्या होता है। अब बस मैं आपके सामने इसकी रीडिंग करने लगी। आपका जो असल में आज काम होगा ना वो यही होगा कि आपने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, जुमले याद करने हैं और सवालात के जवाबात याद करने हैं लेसन नंबर 3 के। अच्छा जी, मुहावरे के मायने गुफ्तगू और बातचीत के हैं। मुहावरे का मतलब क्या है? गुफ्तगू या फिर बातचीत। मुहावरे के मायने हैं गुफ्तगू करना या फिर बातचीत करना, जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, इसलिए। अब आगे इसकी तारीफ सुनिए। उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले बयान के असलूब के मुताबिक हो। अहले बयान यानी उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले या इंग्लिश बोलने वाले जो बोल रहे हैं, जो बात करते हैं, उनके असलूब के मुताबिक हो, यानी जो बात जिस तरीके से करते हैं जी। जी, मुहावरा जो है वो बेटा आपको मैं बताऊंगी कि वो जो मैं आपको अभी आपके सवाल का आंसर भी बताती हूँ। तो मुहावरे जो है वो अहले बयान के असलूबे बयान के मुताबिक हो। तो आपने इस डेफिनेशन को सेम ऐसे ही याद करना है। इसको आपने जो है जैसा लिखा होगा वैसे एज इट इज आपने बुक में उसमें अपने पेपर में या उसमें लिखना है, लर्न भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके 3 मिसालें देनी है। तो मुहावरा जो है वो हमेशा अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ कि मुहावरा जो है वो हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी ऑपोजिट में। हकीकी का ऑपोजिट क्या होगा? मजाजी, यानी एक चीज हकीकत में है जो रियलिटी में है, और एक चीज हकीकत में नहीं है, गैर हकीकी है। यानी आप इस तरह से कर सकते हैं कि मुहावरा जो है वो अपने हकीकी मायने में नहीं बल्कि गैर हकीकी मायने में इस्तेमाल होता है, तो उसको हम मुहावरा कहते हैं।
मुहावरा हमेशा दो या दो से ज्यादा, मुहावरा हमेशा दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। यानी मुहावरे में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या दो से भी ज्यादा मुहावरे अल्फाज जो है वो अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मिसालें दी हुई है, मिसालें क्या हैं? तारीख रकम करना, तारीख रकम करना, उसका मतलब है कि एक तारीख लिख देना। अब ये नहीं है कि एक रकम हमने मनी हाथ में ली है और उसको हम उस तारीख में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये हकीकी मायनों में नहीं, मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। तो तारीख रकम करना यानी नई तारीख लिख देना। यहाँ पे हम जैसे इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सहाबा कराम ने सहावत की तारीख रकम कर दी, यानी कि आज तक हम उनकी जो है तारीख के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, आज तक हम जो है उनकी उन मिसालों को, सहावत की मिसालों को देखते चले आ रहे हैं और ये इन्होंने तारीख रकम की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, फिर है निछावर करना, कुर्बान कर देना। ठीक है, नबी पाक जब मदीना तशरीफ लेके आए तो मदीना के लोगों ने उन पर जो है पत्तियां निछावर की या फूल निछावर किए, कुछ इस तरह से हम जुमला भी बना सकते हैं। तो फूल डाल देना, निछावर करना। रूह परवास करना, रूह परवास करना क्या मतलब है जी? रूह परवास करना, फोत हो जाना। अब यानी रूह है इंसान की, वो परवास कर गई है, जैसे परिंदा परवास करता है। तो हकीकत में ये वर्ड जो है वो ये है कि फोत हो जाना, ये मजाजी मायनों में इसका लफ्ज का मतलब होगा फोत हो जाना। अच्छा बेटा, आपने यहाँ पे ये है कि मुहावरा जो है वो असल में अरबी जुबान का लफ्ज, अरबी जुबान का लफ्ज है ये। मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ। अच्छा जी, तो मुजाहिदीन, बगैर पानी पिए हुए मुजाहिद गाजियों की रूह परवास कर गई। बगैर पानी पिए हुए मुजाहिदीन की कह लें, गाजियों की कह लें, रूह परवास कर गई। खातिर ख्वाह मदद करना यानी बहुत ज्यादा मदद करना। हजरत उस्मान गनी ने हजरत उस्मान गनी गरीबों की खातिर ख्वाह मदद किया करते थे। फिर है कसम खाना। अब कसम हकीकत में हम खा नहीं सकते, ये कोई रोटी नहीं है या कोई ये चावल नहीं है या ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खाई जाए, यानी हकीकत से ताल्लुक नहीं ना होता। यानी मुहावरा हकीकी मायनों में नहीं, हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, नहीं, बल्कि अब कसम खाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम खा लें, लेकिन हम इसके गैर हकीकी मायने क्या लेंगे कि मैं अल्लाह की या मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं अम्मी की कसम खाता हूं, हम ऐसे भी अल्फाज बोल लेते हैं। तो गैर हकीकी मायनों में ये है कि ये मैं वादा करता हूं, कसम खाना कि मैं ये जुबान देता हूं कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, आगे है जनाब घोड़े बेचकर सोना। अब ये नहीं है कि मेरे पास दर्जन घोड़े थे और वो मैंने बेच दिए और फिर मैं सो गया। मिसाल मतलब इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल बेखबरी की नींद सोना, बेखबर हो जाना। इसके बाद है दाल गलना, ये मैं आपको अभी चंद चंद बता रही हूँ। उस्ताद के सामने उसकी अहमद की दाल ना गली, यानी कि बात ना बनी, उसने झूठ बोलने की कोशिश की या झूठ बताने की कोशिश की, बात बनाने की कोशिश की, यानी कि बात ना बनना। खून सफेद होना, अब ये नहीं है कि हमारा खून जो है रेड होता है, वो जब किसी का खून निकाला गया तो वो सफेद था, यानी कि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये गैर हकीकियत। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम देखते हैं बेहिसी इंसान की बतानी हो, कि जब जैसे हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करेंगे, रिश्तेदारों का तो आजकल खून ही सफेद हो गया है, या लोगों का आजकल खून ही सफेद हो गया है, यानी लोग बेहिस हो गए हैं, कोई काम किसी के काम नहीं आते या जरूरतमंद की मदद नहीं करते, इस मामले में ये बोला जाता है। मुट्ठी गर्म करना, अब ये नहीं कि कोयला लेके मुट्ठी पे रख दिया और मुट्ठी गर्म हो गई, हकीकत में नहीं ना इस्तेमाल होता मुहावरा, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ।
तो मुट्ठी गर्म करना, किसी को रिश्वत देना, पैसे देना। मैंने उसकी मुट्ठी गर्म की तो उसने मेरी मदद की, या उसने मुझे नौकरी दिलवा दी। ठीक है, इस सेंस में ये यूज होता है। तो इसको जो है वो अच्छा जी, इसके बाद जो है वो है मुहावरात जो इस्तेमाल होते हैं, वो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। बस इतना काम है आज का आपका। दरअसल जुमलों में मुहावरे इस्तेमाल हुए, आप जुमलों में मुहावरात की निशानदही करें। ठीक है, इसकी निशानदही आप लोगों ने करनी है। अब पहला है, ये तकरीबन 1 2 3 6 अल्फाज, ये 6 हैं। वो इम्तिहान में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो शर्म से पानी पानी हो गया। अब ये नहीं है कि वो शर्म से पानी पानी उसके बाद बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था जी, पानी पानी हो गया, शाबाश। तो पहले को उसके पानी पानी हो गया के नीचे अंडरलाइन कर लें, पानी पानी, इसको अंडरलाइन कर लें, पानी पानी हो गया। वो बहुत लाइक बनता था, मगर उस्ताद ने पहला ही जवाब दिया, पहला ही सवाल पूछा तो वो बगले झांकने लगा। दूसरा क्या मुहावरा होगा? बगले झांकना, यानी इधर उधर देखना। जब सवाल का जवाब ना आया तो वो इधर उधर देखने लगा, कि यानी शर्मिंदा हो गया कि अब मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। बगले झांकना को भी अंडरलाइन कर लें। औबाश बेटे की हरकतों की वजह से बाप की इज्जत हाक में मिल गई। हाक में मिलना, अब इज्जत जो है दिखाई नहीं देती। इज्जत एक वर्ड है, रिस्पेक्ट। अब ये नहीं है कि इज्जत जो थी वो हमने उतार के जो है हाक में मिला दी है, मट्टी में मिला दी है, बल्कि इज्जत का खत्म हो जाना, हाक में मिलना, इज्जत ना रहना। ठीक है, उसके बाद है जी, वो बहुत बेईमान आदमी है, उसने इमदादी फंड का रुपया खाकर डकार तक ना ली। डकार तक ना लेना यानी नाम तक ना लेना, उसको कहीं खर्च ना करना, जिक्र ना करना, बताना ना। डकार कब ली जाती है? जब हम कोई चीज हजम करते हैं, तो एक निजाम है अल्लाह ताला का कि हम मुंह से डकार लेते हैं। तो डकार ना लेना, बिल्कुल भी खबर तक ना होने देना, कहीं भी खर्च ना करना, किसी को पता ना चलने देना, इसको भी अंडरलाइन करें। फिर है जनाब, हम कितने मजे मजे की बातें कर रहे थे और उसने अचानक आकर रंग में भंग डाल दिया। रंग में भंग डालना यानी कि रंग में भंग डालना को हम कहेंगे इस वक्त मिस रंग में भंग डालना क्या होगा? यानी उसने आकर रंग में भंग डाल दिया, माहौल खराब कर दिया। माहौल को खराब कर दिया जी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं है, दोबारा से बताएं। जबीब ने कुछ लिखा था जी, रंग में भंग डालना, मजा खराब होना, मजा ना आना। ठीक है, हाँ साहब, ऐसे की क्या मसरूफियत कि आप दोस्तों के लिए ईद का चांद हो गए हैं। ईद का चांद होना, शाबाश। ईद का चांद होना यानी कि बहुत कम दिखाई देना, कभी कभी नजर। अब ईद का चांद जो है साल में एक दफा ही नजर आता है ना, तो यहाँ पे हम ईद का चांद के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ईद का चांद हो जाना, कभी कभी दिखाई देना, कि हाँ साहब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि आप दोस्तों में ईद का चांद होगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये अब आपके सवालात थे 10 के 10। आपने जो है जी बेटा, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको जो बताया है इट्स इनफ। आप लोगों ने अब ये कॉलम, सवाल नंबर ये 7 8 और मुहावरे के बारे में आपको बता दिया। आप खुद से अब रीडिंग करें, जो लोग बाद में आए हैं मुहावरे की रीडिंग करें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह 8वीं क्लास में आप, तो आप लोगों को खुद साफ और वाजे तौर पे पता चल जाएगा कि बहुत आसान है ये। हम दोबारा से इसको इंशाल्लाह करेंगे आपकी ग्रामर में। फिर से मैं बता दूं, मुहावरा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने गुफ्तगू और बातचीत के हैं। ये अपने हकीकी मायनों में नहीं, गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हाक में मिलना, ईद का चांद होना, कभी कभी नजर आना, निछावर करना, रूह परवास करना, खातिर हुआ मदद करना, घोड़े बेचकर सोना। तो ये हकीकत में नहीं वर्ड इस्तेमाल होते। ठीक है जी, इसके बाद मैं मीटिंग जो है वो एंड कर रही हूँ। कोई सवाल आपका है तो बता दें, तो इजाजत दीजिए। फिर इंशाल्लाह अजीज कल हम बी का कोई काम करेंगे
اور انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ کل نوٹس میں سے میں آپ کو کرواؤں گی. ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے. چلیں جی بیٹا, اللہ حافظ.